imagine with me today, और क्या आप मेरे साथ कल्पना करेंगे? you are standing in the most powerful courtroom of the time. और बहुत ही ज़्यादा एक कोर्ट के हिस्से में आप खड़े हैं. This room is glistening with the marble floors. और उसमें बड़ी चमक है उसके मार्बल फ्लोर की वजह से. And the people of the council, the judges, are pristine in their fine robes. और जो वहाँ के लोग हैं जो जजेस हैं वो अपने रोब्स में हैं. And everybody is looking at you. You are the center of focus and attention there. और आप तस्वीर एक ऐसी बनाए कि आप सबके मध्य में हैं और सबका ध्यान आपके ऊपर केंद्रित है. These people in their fine robes और ये जो लोग हैं जो अपने रोब्स में हैं are highly regarded in the city of Jerusalem. और उनको इस यरूशलेम शहर में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है. And they are priests, they are Sadducees, they are Pharisees, they are religious leaders. और ये धार्मिक अगुवे हैं, फरीसी हैं, सदूकी लोग हैं. And there are scholars of the law also sitting there in that courtroom. और कानून के स्कॉलर्स भी उस जगह पर उपस्थित हैं. This is the Sanhedrin of the Jews in the first century that we are talking about. और ये प्रथम शताब्दी के समय की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर यहूदियों का ये सनेड्रीन है. And this Sanhedrin, this council has 70 members. और इस काउंसिल में 70 लोग हैं सम्मिलित उसमें. And even the Roman Empire recognized their authority in Jerusalem, in Israel, to deal with the problems that they had with their religion and with their society. और जो रोमी सरकार है वो इन लोगों को जो ये समाज में है इनको बहुत बड़ा दर्जा देते हैं. And all of these members of the Sanhedrin of the council, और जितने लोग इस काउंसिल के सदस्य हैं, that is the kind of a supreme court of the day. ये एक तरह से आज के समय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की तरह है. They have one question. एक सवाल है उनका. By what power? किस ताकत के साथ? By what power are you doing what you are doing? किस शक्ति के साथ, किस ताकत के, किस अधिकार के साथ तुम वो कर रहे हो जो कर रहे हो? It sounds like a legal question. और ये एक कानूनी सवाल जैसा दिखता है. But it was a very calculated question to trap two men. लेकिन ये एक तरह से बड़ा नपातुला एक सवाल है किसी को कब्जे में करने का. And these two men were no legal experts. They were not criminals. They did not do anything wrong. और ये जो दो शख्स हैं इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था इनका. But they did something that upset the higher ranks of the society in the time. लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण से जो ये लोग अधिकारी थे उनको काफी दिक्कत हुई. So if they were asking this question to them, by what power are you doing what you're doing? इसलिए यदि ये सवाल ऐसा करते हैं कि तुम जो कर रहे हो ये किस अधिकार से करते हो? They wanted to know whether it was their own power or they were claiming to do this with divine power. वो ये जानना चाहते थे कि ये जो लोग हैं ये अपनी ताकत से, अपने अधिकार से कर रहे हैं या कोई ईश्वरीय अधिकार इनके पास है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं. That courtroom scene, my dear friend, is a blessing to us given in the book of Acts. और ये जो कोर्ट रूम का जो एक सीन है ये हमारे लिए एक आशीष का कारण है जो हमारे लिए हमको वचन में दिया गया. Because these ordinary people who had this extraordinary power, क्योंकि ये जो साधारण लोग हैं जिनके पास असाधारण या अद्भुत अधिकार है, ताकत है, शक्ति है, as they answered this simple question, जैसे इन्होंने ये एक साधारण सा सवाल का जवाब दिया, by what power you do what you do,
और सवाल ये था कि तुम किस अधिकार से करते हो जो तुम करते हो। It changes everything for us today also, friends, as we live out the gospel in this world. मेरे मित्रों, ये सवाल हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जबकि हम दुनिया में इस समय में जीते हैं। How we live today, how we can answer such questions today. हम कैसे आज जीते हैं और कैसे हम सवालों का जवाब देते हैं। How we serve God's kingdom, how we minister to people. और हम परमेश्वर के राज्य में कैसे सेवा करते हैं और कैसे हम लोगों को जवाब देते हैं, उनके बीच में सेवा When करते हैं। everything and everyone may be against us, जबकि हर बात या हर लोग हमारे विरोध में हो, how do we answer them when they question our faith? तो हम उनको कैसे जवाब देते हैं जब वो हमारे विश्वास के ऊपर सवाल उठाते हैं। This story is found in the book of Acts chapter 4 verses 1 through 22. प्रेरितों के काम 4:1-22 तक His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। So this story actually must lead us to what happened before they were called to the council. So there is the council. Peter and John were speaking in the council, and they were called and they were questioned, by what power or by what name did you do this? हमारे लिए जानना आवश्यक है कि जब ये लोग इस सभा में खड़े हैं सदूकी सरदारों के बीच में और ये जो बातें हुई हैं, ये किस कारण से ऐसा हुआ, What did actually they do? उन्होंने किया क्या। It is narrated to us in the previous chapter 3 of the book of Acts. और जो जिस कारण से ये सब हो रहा है ये हमारे लिए बताया गया पिछले अध्याय में, तीसरे अध्याय में। If you read from chapter 3 verse 1, यदि आप तीसरे अध्याय के प्रेरितों के काम के तीसरे अध्याय it आयत says 1 में, Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour, and a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. और ये जिस विषय में बात की गई है वो है तीसरा अध्याय 1-2 में। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। So there was this beggar who was doing this for number of years. तो यहाँ पर एक ये शख्स है, एक भिखारी जैसा है जो कई सालों से इस प्रकार का कार्य कर रहा है। Peter and John, who were filled with the Holy Spirit just a few days ago, और पतरस और यूहन्ना अभी कुछ ही दिन पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, and they see this situation of a lame person, और वो एक ऐसी परिस्थिति को देखते हैं जहाँ पे एक लंगड़े व्यक्ति को रखा गया, and they healed him. He began to walk. और वो उनके द्वारा, वो उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो चंगा हुआ और वो चलने लगा। He not only began to walk, वो न केवल चलने लगा, but he came and entered the temple and began leaping. It says in verse 8, he was not only walking, he was leaping and praising God. और ये जो व्यक्ति चंगा हुआ था वो न केवल चल रहा था लेकिन वो उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। Seeing him in the temple, और उसको देखते हुए कि वो मंदिर में आया है, leaping and praising God, प्रभु की स्तुति करते हुए और कूदते हुए देखा, thousands of other people who saw him also began praising God in the temple. और उसको देखकर जो हजारों लोग उस मंदिर में थे वो भी उसके साथ आराधना करने लगे, प्रभु की स्तुति करने And लगे। verse 10 says in chapter 3, और तीसरा अध्याय प्रेरितों के काम 10वें आयत में इस प्रकार they लिखा were है, all filled with wonder and amazement at what had happened to him. और इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। But this power that worked in the life of this lame person, परंतु ये जो कार्य इस लंगड़े व्यक्ति के जीवन में हुआ, it surprised the experts, the
the elite people of the society, the religious elites of the society. तो जो उस समाज के जो धार्मिक लोग थे वो उससे अचंभित हुए, Because now people were gathering around Peter and John. क्योंकि अब लोग जो है पतरस और यूहन्ना के चारों इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं। Chapter 4 says about 5,000 people became followers of Jesus Christ, seeing that miracle. और अगले अध्याय में, चौथे अध्याय में लिखा है कि ऐसा आश्चर्य कर्म देखने के बाद 5,000 लोग उनके साथ जुड़ गए। Now, if you would think that these people, the elites, must be very happy that there was a revival going on in the temple. और आप सोच सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है कि जो समाज में जो बड़े अगुवे लोग थे वो बड़े खुश हुए होंगे कि देखो यहाँ तो जागृति आ गई है मंदिर में। They must be thanking God that there were praises going on inside the temple. और वो शायद परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे कि देखो ये तो अच्छी बात है और आराधना हो रही है मंदिर के अंदर। You would be completely wrong because they were not happy even for a second. तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये जो धार्मिक अगुवे थे ये तो एक सेकंड के लिए भी खुश नहीं हुए। They were not happy that someone who was lame and begging for years together was now walking. और वो इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति कई वर्षों से सड़क के किनारे भीख मांगता था अब वो चंगा हो गया है। They were not happy वो नहीं खुश थे that this lame person has brought now thousands of people into the temple who were praising God. और ये इस बात से अगुवे, धार्मिक अगुवे इस बात से भी खुश नहीं थे कि इसकी चंगाई के द्वारा और इस लंगड़े व्यक्ति के द्वारा हजारों लोग मंदिर में स्तुति आराधना कर रहे हैं। So what do they do? इसलिए वो क्या करते As हैं? all religious authorities, when they are threatened, जब बहुत से धार्मिक अगुवे जब उनको धमकी लगती है, they called Peter and John to the council meeting. तो तब वो एक अपनी सभा में पतरस और यूहन्ना को बुलाते हैं। They were arrested. उनको हवालात में बंदी बनाया It जाता was है evening. और शाम का समय They है could not call the council meeting in the evening. और शाम को वो काउंसिल सभा भी नहीं बुला सकते, So they were put in jail. इसलिए उनको जेल में डाला गया। Next morning, when the council gathered, और अगले सुबह जब सभा इकट्ठी हुई they called these men तब इन दोनों व्यक्तियों को बुलाया गया and they asked them, "What is going on? You must tell us what is the power with which you are doing this." और जब उनको सामने लाया जाता है तो सभा में खड़ा होकर उनसे पूछा जाता है कि तुम ये किस अधिकार के साथ कर रहे हो जो तुम कर रहे हो। That was the question. यही तो सवाल था, By what power or by what authority you are doing what you are doing in the temple? तो किस अधिकार से, किस ताकत के द्वारा तुम ये काम कर रहे हो जो तुम मंदिर में किए हो। Look at verse 4 of chapter 4 and verse 8. आप प्रेरितों के काम चौथे अध्याय की 8वीं आयत में देखें मेरे साथ। And it says, and Peter, Yeah, chapter Peter 4 and verse 8, I am in chapter 5. Yeah. Then Peter, filled with the Holy Spirit. तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, These 5 words, filled with the Holy Spirit, is what made the whole difference. और ये जो 4 शब्द हैं पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, यही सब कुछ बदल देता है, फर्क लाता है। They are the ones that explain everything what has happened in the life of Peter and John. और यही 5 शब्द हैं उस बात को समझाते हैं जो कुछ भी पतरस और यूहन्ना के जीवन में हुआ। These are the 5 words यही तो 5 शब्द हैं that transformed Peter जिसने पतरस के जीवन को बदलाव किया in just 50 days केवल 50 दिनों में, to be a mighty witness before the most powerful council. एक सबसे ज्यादा जो अधिकार के साथ जो एक सभा बैठती है उसमें एक सच्चा गवाह बने। The same Peter 50 days ago और यही पतरस जो 50 दिन पूर्व was hiding himself.
वो तो छुपा हुआ था. He was scared of a woman who said, "Yeah, this guy I know, he had been with Jesus." वो तो उस स्त्री से भी डरा हुआ था जिसने उसको देखकर बोला था कि मैंने इसको यीशु के साथ देखा है. The same person who denied Jesus publicly. ये वही पतरस है जिसने यीशु को समाज के मध्य में इनकार किया. The same Peter who ran away from Jesus, leaving him on the cross. ये वही पतरस है जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ा देखकर भाग गया वहां से. The same Peter who went back to his fishing business. ये वही पतरस है जो वापस अपने मछली पकड़ने के धंधे में चला गया. Filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर stands before the council, ये सभा के सामने खड़ा होता है. and he says in verse 8, और 8वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं Then पतरस, Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers of the people and elders, if we were being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed?" और 8-9 आयत में लिखा, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों और लोगों के सरदारों और पुण्यों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो कुछ भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ. And he pointed his finger at the council, at the Jewish leaders, at the most powerful people of the time. और वो अपनी उंगली का निशाना इन पुण्यों और जो सरदार हैं, हाकिम हैं, उनकी तरफ बढ़ाता है. And he said, "This Jesus that you crucified." और वो कहते हैं, ये यीशु जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया. Remember, these same people had condemned Jesus to be crucified and handed over to the Romans. और आपको याद होगा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने यीशु पर दंड की आज्ञा दी और उसको रोमी सरकार के अधीन किया. They had the power. उनके पास ताकत थी, They had the authority. उनके पास अधिकार था. They could do with Peter and John what they had done with Jesus. वो तो पतरस और यूहन्ना के साथ वही कर सकते थे जो उन्होंने यीशु के साथ किया But था. what changed Peter? What changed his demeanor? What changed his speaking authority were these 5 words. लेकिन जिस बात ने पतरस को के हृदय को परिवर्तन किया, पतरस के जो अधिकार के साथ वो बोल रहा था, वो इसलिए था क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोल रहा था. Peter and John, filled with the Holy Spirit, पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए. standing before the council, before the Supreme Court. ये अपने उस सभा के सामने, पुण्यों के सामने खड़े हुए हैं. No lawyer वहाँ कोई लॉयर to नहीं है defend them. जो उनकी वकालत करे. No notes. कोई नोट्स भी नहीं है. Nobody to support them. कोई उनका सहायक भी नहीं है. But the people who had been praising God. बट वो लोग जो प्रभु परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे. And they had the power of the Holy Spirit with them to make these claims that they were making before the council. और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ इस अधिकार को दिखा रहे थे जो उन्होंने परमेश्वर से पाया था इन सभा के बीच में. But there is this insight that you gather about them as they were standing before the council. और जब वो इस सभा के मध्य में खड़े हैं तो आप ऐसा उनके अधिकार के विषय में सोच सकते हैं. These council members, they are elite of the society. They probably live in the poshest houses and areas in Jerusalem. और ये जो लोग हैं सभा के, जो अगुवे हैं, पुण्य हैं, ये जो है बहुत ही ऊंचे पद वाले लोग हैं. They are looking at Peter and John, वो देख रहे हैं यूहन्ना और पतरस को. Galileans, ये गलीली हैं. and because they were from Galilee, they had a typical accent, so people did not really respect them. और क्योंकि वो गलील के थे तो उनका एक विशेष बातचीत करने का तरीका था जिसको लोग ज्यादा आदर नहीं They करते were थे. fishermen, वे मछली they पकड़ने were वाले थे, वो laborers, कठिन काम they were करने वाले थे, hardworking people. बहुत मेहनत करते थे. Probably they were not dressed in the best of the robes at और the time. और हो सकता है उस समय में वो बहुत अच्छे कपड़े भी ना पहने होंगे. But you see what the council observed about them. लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सभा थी उनके विषय में क्या ध्यान कर रही है. In verse 13, chapter 4, verse 13. प्रेरितों का काम 4:13 में लिखा है, Now when they saw, the council members saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, ordinary men, they were astonished,
and they recognized that they had been with Jesus. जब उन्होंने जो सभा के लोग थे सदूकी और पुरनिये, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं। So there was a miscalculation among the council members. और अब जो ये सभा के लोग हैं ये आपस में ही मतभेद कर रहे हैं। A grave misjudgment of who these people were. और ये उस बात का गलत धारणा निकाल रहे हैं कि ये लोग थे कौन। Because they assumed that this power they have is their own. क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो ताकत अधिकार इनके पास है ये इनका अपना है। They looked at them, वो उनको ऐसे देख रहे थे, saw them as uneducated, ordinary Galileans. और वो उनको अनपढ़ और साधारण गलीली पुरुष की तरह देख रहे थे। And the text says that then they recorded something that was not visible earlier, but now as they looked intently at them, they recognized something and they voiced it that they had been with Jesus. Amen. और वो जो इस बात को बोलते हैं जो उन्होंने शायद पहले ध्यान नहीं दी होगी, लेकिन वो अब देखते हैं कि ये इस कारण है क्योंकि ये दोनों चेले जो हैं यीशु के साथ रहे हैं। Another set of 5 words. ये भी 5 शब्द ऐसे हैं। So they were filled with the Holy Spirit. पहली बात कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए And थे they had been with Jesus. और वो यीशु के साथ रहे। And now they are standing before the council, the most powerful people who had authority to condemn them to death. और अब वो एक सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाली सभा के बीच में है, लोगों के बीच में है, और जिनके पास अधिकार है कि उनको मृत्यु का दंड भी दे सके। And when they recognize this, और जब वो इस बात को पहचान लेते हैं that they had been with Jesus, कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं, everything changed. सब कुछ बदल गया। Their maths changed. उनकी गणित बदल गई Their legal mathematics changed. और जो भी उनके कानूनी गणना थी वो भी बदल गई Entirely. बिल्कुल पूरी रूप से। They couldn't understand what to do with these people now. अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन दो पुरुषों के साथ क्या करें। That's why the second thing we see इसलिए जो दूसरी बात हम देखते हैं in this chapter, इस अध्याय में, that the power that they had, that politics could not stop. और अब वो इस बात को देखते हैं और जान जाते हैं कि जो अधिकार इनके पास है वो राजनीति नहीं रोक सकती। Now what we see here going on, और अब जो हम यहाँ देखते हैं चलता हुआ, that there was the theological problem they were going through. और यहाँ पर एक तरह से theological समस्या है। That's why there were scholars there, the scholars of the law, the Sadducees and the other religious leaders were part of the council. इसीलिए यहाँ पर विद्वान लोग हैं जो इस सभा के सदस्य थे, And most of them the Sadducees. और ज्यादातर लोग इसमें सदूकी लोग थे। Now the problem the Sadducees had और जो सदूकी लोगों की जो समस्या थी was the theology of resurrection. और उनके सामने हमेशा एक समस्या होती थी कि वो विश्वास करें कि पुनरुत्थान है ही नहीं। And this message that Peter and John were preaching और ये जो संदेश पतरस और यूहन्ना जिसका प्रचार कर रहे थे was a message of resurrection of Jesus and also the resurrection of the dead. और उनका संदेश, उनका प्रचार करने में ये सम्मिलित था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे और वहां पर दूसरे लोगों का भी पुनरुत्थान हुआ। The group of Sadducees और ये जो झुंड था सदूकियों का did not believe in the resurrection at all. ये पुनरुत्थान में तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते थे। They controlled the council in Jerusalem. और ये पूरे जो ये सभा थी यरूशलेम की उसके ऊपर अधिकार They रखते थे controlled the economy of the temple. और ये मंदिर की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे And they controlled the Jewish relationship with the Roman Empire. और वो जो यहूदियों का जो एक रिश्ता था रोमी सरकार के साथ उसको भी अधिकार में रखते थे। But their theology was लेकिन उनका जो धर्म विज्ञान है वो ये था that the dead remain dead forever. कि जो मृतक हैं वो हमेशा के लिए मरे ही रहते हैं। The resurrection from the dead is not possible at all. और उनके अनुसार मनुष्य का जी उठना पुनरुत्थान है ही नहीं। But if
Jesus rose from the dead, लेकिन यदि यीशु जीवित हुए मृतकों में से, as was the story, the news of the day in those days, जैसा कि ये पूरा समाचार उन दिनों में चल रहा था, the breaking news was that Jesus was no longer in the grave. और जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो ये थी कि यीशु अब कब्र में नहीं है। And his disciples were going around and they had gathered thousands of people who believed in their message of resurrection of Jesus. और उनके जो चेले थे वो सब जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का संदेश दे रहे थे। This was a political earthquake for the Sadducees. और ये एक तरह से राजनीतिक भूचाल था सदूकी लोगों के लिए। If they accept the resurrection, यदि वो इस बात को ग्रहण कर लें कि पुनरुत्थान है, then they lose all ground in their belief system. तो उनका तो विश्वास ही खत्म। But if they deny the resurrection, लेकिन यदि वो पुनरुत्थान का इनकार करते हैं, then why are these people performing these miracles in the name of Jesus? तो फिर ये व्यक्ति जो पुरुष हैं ये कैसे आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं यीशु के नाम में? Notice they are not denying that this lame man has been healed. आप ध्यान रखें कि ये जो लोग हैं सदूकी, ये इस बात का इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति था ये अब चंगा हो गया। They themselves must have witnessed him begging at the temple steps many of the times that they entered the temple. इन सदूकी लोगों ने भी इस लंगड़े व्यक्ति को देखा होगा जब ये भीख मांगा करता था मंदिर के बाहर। So their dilemma is now we have the political power. और अब ये उलझन में है कि अधिकार तो हमारे पास है राजनीति का। Our theology of no resurrection is now challenged. और अब जो हमारा पुनरुत्थान जिस पे हम विश्वास नहीं करते, अब उसके लिए हमारे पास चुनौती है। So what do we do with these men तब हम इन व्यक्तियों के साथ क्या करें who are healing, ये जो चंगाई दिखाई दे रहे हैं, who are inviting people to worship the Lord in the temple? जो लोगों को बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम मंदिर में आके आराधना करो। Chapter 4 says 5,000 people have followed these people and they were gathering in the temple and praising God. और वचन में लिखा पवित्र कहता है कि 5,000 लोगों ने इनकी भीड़ उनके साथ जुड़ गई और लगातार मंदिर में प्रार्थना करने लगी, आराधना करने लगी। The lame man who was healed और जो लंगड़ा व्यक्ति चंगाई प्राप्त is किया an था, adult of 40 years old. और वो 40 वर्ष से ऊपर का था। They cannot say no, this miracle did not happen. और वो कह नहीं सकता कि ये ऐसा चंगाई तो हुई So नहीं। they huddled in private. They sent Peter and John away. They said, let's talk among ourselves. और तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को अलग किया और आपस में झुंड बनाकर बातचीत करी। And they did not ask, उन्होंने ये नहीं बोला, पूछा is what Peter and John are saying is true or not? उन्होंने ये नहीं कहा कि पतरस यूहन्ना जो बोल रहे हैं क्या वो सच है या गलत है। They did not ask उन्होंने ये नहीं पूछा if the lame man was really healed or not because they couldn't deny it. वो ये भी नहीं पूछ सकते थे कि ये चंगा हुआ लंगड़ा व्यक्ति के नहीं, क्योंकि वो तो देखा था। They asked, पर उन्होंने ये पूछा, what shall we do with these men? उन्होंने ये कहा कि हम इन व्यक्तियों के साथ, पुरुषों के साथ क्या करें? When you can't deny the miracle, जब आप किसी आश्चर्य कर्म का इनकार नहीं कर सकते। the lame man was healed and he is right there standing before them. और ये जो लंगड़ा व्यक्ति चंगाई पाया ये उनके सामने खड़ा है। All Jerusalem must have come to know about this miracle. और पूरे यरूशलेम के लोगों को इस आश्चर्य कर्म के बारे में पता लगा होगा। They can't deny the resurrection of Jesus Christ now, वो अब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का इनकार नहीं कर सकते because the tomb is empty. क्योंकि कब्र तो खाली है। So they ask, what shall we do now with these? तब वो कहते हैं कि अब हम इन व्यक्तियों के साथ क्या करें? They tried everything to silence them वो सब कुछ कर चुके उनको शांत करने के लिए, because that's the only weapon they had now. क्योंकि एक यही तो यंत्र था उनके पास। So the Sadducees called John and Peter once again before them. इसलिए सदूकी लोग जो है दोबारा से पतरस और यूहन्ना को अपने सामने बुलाते हैं। They said, don't speak in his name, please. वो कहते हैं अब इस नाम में तुम प्रचार नहीं करना, बोलना नहीं। Speak no more in the name of Jesus that you are using to heal the sick. और वो कहते हैं कि अब इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करना कि जिसको तुमने इस्तेमाल किया, जिस नाम को चंगाई देने के लिए। The only weapon they had was to silence them. और जो उनके पास एक हथियार था वो बस ये था कि उनको शांत कर दें। Nothing new here. कोई नई बात नहीं है। That's what most people who are powerful, who are privileged,
will do. They will silence anybody who doesn't speak their language, who doesn't think the way they think. और ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग अधिकार में होते हैं वो नहीं चाहते कि अगर उनके जैसा मत रखने वाला कोई व्यक्ति है तो वो शांत रहे, क्योंकि वो उनके जैसा दिखता नहीं, उनके जैसा बोलता नहीं। So the Sadducees and the council commanded them not to speak in the name of Jesus. इसलिए सदूकी लोगों ने और दूसरे अधिकारियों ने उनको आदेश दिया कि इस नाम का प्रचार मत करना। But Peter and John, परंतु पतरस और यूहन्ना, because they were filled with the Holy Spirit, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, because they had been with Jesus, क्योंकि वो यीशु के साथ रहे थे, gave us the most important sentence in the history of the church's mission. उन्होंने एक सबसे जो मुख्य एक वाक्य है मिशन के लिए वो हमको दिया। They said, उन्होंने कहा, you decide, you are the judges, you decide वो कहते हैं तुम तो जज हो, तुम निर्णय लो whether it is right क्या ये सच है, न्याय in the sight of God परमेश्वर की निगाह में to listen to you rather than to God. You judge. कि तुम ही इसका न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? As for us, क्योंकि हमारे लिए we cannot help speaking about what we have seen and heard. क्योंकि ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है वो ना कहें। Simple words, they said, we cannot help it. वो साधारण शब्दों में ये हमसे नहीं हो सकता। It reminds me of the song in the Sunday school. It's bubbling, it's bubbling in my heart, in my soul. और ये मुझे संडे स्कूल का एक गाना याद दिलाता है कि मैं संभाल नहीं सकता क्योंकि मैं वो उछले यीशु मेरी आत्मा में We उछले। have seen it. हमने देखा है, We have witnessed it. हम इसके गवाह We हैं, have heard. हमने देखा है, सुना है। Jesus has appeared as the resurrected Lord to us. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया है। This is not a defiance for defiance sake. This is not to win an argument in the court of law. और ये किसी प्रकार से कानून के कोर्ट में लड़ने का कोई विषय नहीं This है। is not a rebellion against the Jewish authorities. और किसी प्रकार से ये रिबेलियन भी नहीं है कि यहूदियों के बीच में ऐसा It है। is just a bubbling and overflow of the encounter they had Amen. with the risen Lord Jesus Christ. आमीन। लेकिन ये तो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है उसके साथ जो हमारी मुलाकात हुई है उसके कारण हम उछल रहे हैं, हम रोक नहीं सकते। To contain that उसको रोक, experience उस अनुभव को रोकना, बांधना is trying to hold the whole ocean in a teacup. ये इस तरह से है जैसे पूरे समुद्र को एक छोटे से कप में आप डालना चाह रहे हैं। Friends, when was the last time in your life मेरे मित्रों, आपके जीवन में कब ये ऐसा आखिरी समय था Jesus became so alive to you कि यीशु आपके जीवन में इतने ज्यादा जीवित दिखाई दिए that you felt that it is irrepressible, you cannot control it, but share about Jesus and praise him. आमीन। कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए लेकिन आप यीशु के बारे में बताना चाहते और उसके प्यार को When जताना was the चाहते। last time in your life कब ऐसा आपके जीवन में आखिरी बार that ऐसा the हुआ love of God, कि परमेश्वर का प्रेम, that the grace of God, परमेश्वर का अनुग्रह, that the compassion and mercy of God परमेश्वर की दया और अनुग्रह felt inside of you in such a way आपके अंदर इस प्रकार से प्रमाणित हुई, it was too big and too overflowing to keep quiet about it. वो इतना ज्यादा महान और बड़ी थी कि आप उसके कारण चुप नहीं रह सकते This थे। is what the power of the Holy Spirit does to us, friends. यही तो मेरे मित्रों पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हम परिपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में ऐसा कार्य करती It है। just does not give us the courage to speak to the authorities, ये हम केवल हमें एक ऐसा अधिकार नहीं देती, साहस नहीं देती कि हम अधिकारों से बात करें, but it gives you the inability to keep silent about it. लेकिन आपको ऐसा बना देती कि आप उसके कारण शांत नहीं रह सकते। So the power that these political leaders and the brokers of politics had, they could not stop it. और इसलिए ये जो राजनीतिक जो अधिकारी थे वो अपनी ताकत के द्वारा उनको रोक नहीं पाए। And thirdly and lastly, तीसरी और आखिरी बात, this is the power that Peter and John said builds on rejection.
और पतरस और यूहन्ना कहते हैं ये वही ताकत अधिकार है जो तिरस्कार के ऊपर स्थापित है। They quoted in their speech उन्होंने अपने जो वो भाषण दे रहे थे उसमें बोला Psalm 118 and verse 22. और भजन संहिता 118 उसकी 22 आयत You know में what it says? आपको मालूम है उस पे क्या लिखा है? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. और वो कहते हैं राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। In the ancient time of the disciples, और चेलों के समय में the cornerstone of a wall of a building was the most significant thing. जो कोने का पत्थर होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती थी। And the construction person who was in charge of looking at these stones, he has to reject so many stones to get it perfectly aligned, and it must be perfect, otherwise the building's stability will be in jeopardy. और जो भी बिल्डर होता था उसको ध्यान रखना पड़ता था कि ये जो कोने का पत्थर है ये बहुत ही दूसरे पत्थरों को छांटने के बाद एक परफेक्ट पत्थर ढूंढते थे ताकि एक पूरी तरह से वो उस पर अलाइन हो, ताकि पूरा जो फाउंडेशन उस पर है वो मजबूत हो। Peter was standing before the 70 top-notch builders of Israel and its religious system. और जो पतरस है वो 70 जो अधिकारी लोग थे इस सभा के उनके सामने खड़ा हुआ है। They controlled the religious system, they controlled the temple, they were the chosen people, they were the ones who decide which stone must go inside the temple, inside the religious life of Israel. और इस्राएल का जो धार्मिक जीवन था एक तरह से और मंदिर का सब कुछ उनके अधीन रहता था, उनके हाथों में होता था निर्णय लेना क्या करना है। Peter looks at them, और पतरस उनके सामने उनको ध्यान से देखते हैं, the master builders, वो कहते हैं कि जो मास्टर बिल्डर्स हैं, and he says to them, और वो उनसे कहते हैं you looked at Jesus तुम यीशु को देखो, and you rejected him. तुमने यीशु को देखा और तुमने उसको तिरस्कार You किया, threw him away. तुमने उसको लगाटा दिया, You eliminated him. तुमने उसको खत्म कर दिया। You decided that he was useless, he was flawed, and what you were looking for was not found to be in Jesus. और तुमने उसको देखा और तुमको लगा कि जो तुम ढूंढ रहे थे वो यीशु में नहीं था, इसलिए तुमने उसको अलग किया। But the God of Israel, लेकिन जो परमेश्वर है इस्राएल का, he picked up Jesus from the grave. जो परमेश्वर है उसने यीशु को कब्र से उठाया। From this scrap heap of history, from the grave, from the dead body of Jesus, God lifted him up. Amen. And now has made him powerful. और अब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा यीशु को जीवन देकर उठाकर उसको अधिकार दे दिया है। Indeed, he has been made the cornerstone. और अब उनको वो पत्थर बना दिया गया कोने का सिरा। My dear friends, the Lord and God of our faith, मेरे मित्रों, जो परमेश्वर हमारा प्रभु और उद्धार करता है, he specializes in building with rejected stone. और हमारा परमेश्वर है जो वो इस बात में निपुण है कि कैसे जो टूटे हुए पत्थर हैं उनसे कैसे बनाया जाए। What they rejected, God exalted. जिनको उन्होंने तोड़ा और किनारे किया उनको परमेश्वर ने उठाया। This is the greatest encouragement that you can have in your life today. हालेलुया। ये सबसे बड़ा आश्वासन उत्साह मैं आपको देना चाहता हूँ आज के दिन में। Because I believe many of us know what it means to be rejected. क्योंकि हम में से मैं विश्वास करता हूँ हम में से कई लोग इस बात को जानते हैं कि कैसा लगता है जब हमारा तिरस्कार होता है। Maybe you have been passed off at your workplace for a promotion. हो सकता है आपको प्रमोशन मिलने की बजाय आज किसी और को दे दिया गया हो। Maybe your academic credentials and your abilities have not been recognized as they should. और हो सकता है जो आपका करियर की जो बातें हैं उसको लोगों ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, पहचाना ना हो। Maybe your own family has written you off. और हो सकता है आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया हो। Maybe some people have told you at workplace and other life in your family that your faith is foolish. और हो सकता है काम की जगह पर या आपके परिवार में या आसपास लोगों ने आपसे बोला होगा आपका विश्वास बेकार है। Or you think that your voice does not matter, your opinions do not matter. और या फिर आपको लगता होगा कि जो आप सोचते हैं विचार रखते हैं उसका कोई मतलब नहीं। If you are feeling like a stone that has been rejected by the master builders today, यदि आपको आज ऐसा लगता
सकता है कि आपका ऐसा पत्थर है जिसको मास्टर बिल्डर ने तिरस्कार कर दिया, This हटा is दिया the हो। good news. ये खुशखबरी है। God specializes in Hallelujah. building with rejected आमेन। stones. कि हमारा परमेश्वर है वो इस बात में पूरी तरह से निपुण है कि जो टूटे हुए पत्थर, बिखरे हुए पत्थर होते हैं जिनको कोई नहीं चाहता, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है निर्माण के लिए। Let us go encourage with this word. आइए इस शब्द के द्वारा हम उत्साह होकर जाएं।